Hello everyone, I welcome you all to the second part of my video, that is Unit 2 of NCERT Psychology, Self and Personality. Alright, now we are going to cover the next concept, that is cognitive and behavioral aspects of self. So basically the self has two aspects. One is cognitive. Cognitive means something related to problem solving, making decision, right? Cognitive is derived from the word cognition. We all know that cognitive is derived from the word cognition, right? So cognition means problem solving, decision making, other mental processes like you are able to do 2 plus 2 is 4 is only because we are able to use our cognitive processes. Is it? Okay, so let's try to understand the cognitive aspects of self. So basically there are two cognitive aspects of self. One is self-concept and the other one is self-esteem. Now what is self-concept? Self-concept क्या होता है? Self-concept होता है कि हम अपने खुद के बारे में, अपने आप को कैसे परसीव करते हैं और हमारी कैपेबिलिटीज के बारे में, हमारी एट्रीब्यूट्स यानी हमारी क्वालिटीज के बारे में हमारा क्या सोचना है, हमारे क्या आइडियाज हैं. दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट. सो बेसिकली द वे we perceive ourselves and the ideas that we hold about our competencies and attributes is called self-concept. यहाँ पे इस definition में word competencies and attributes, these two words are the key words. Okay, so you need to mention these two words in the definition, otherwise इसके अलावा आपका जो examiner है वो board exam में आपके marks cut कर सकते हैं. Okay, alright, so आप अपने बारे में कैसी परसेप्शन रखते हो, कैसी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, आपके खुद के बारे में क्या आइडियाज हैं, आपकी खुद की क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स यानी कि क्वालिटीज, ठीक है, आपकी खुद की एट्रीब्यूट्स के बारे में, आपकी खुद की कॉम्पिटेंसीज यानी कॉम्पिटेंसीज मीन्स मैं कितने लायक हूँ, किस चीज के कितने लायक हूँ, ठीक है. सो इन सब के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, कॉम्पिटेंसीज के बारे में, खुद की कॉम्पिटेंसीज के बारे में क्या आइडिया है आपका, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ द सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन बी both. It could either be positive or it could be negative. So अब आपने नोट करा होगा कि बहुत सारे एरियाज में हम कहते हैं कि हम इसमें अच्छे नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल, if somebody is not good at cooking, so they may say, oh, I'm not good at cooking. Or if somebody is good at speaking skills, or if somebody is good at running, so they may say that I am good at running, I'm good at racing, I'm good at making YouTube videos. So whenever you are addressing yourself in a positive manner, that is whenever you say that I am very brave or I am athletic, that means you have a positive self-concept in that area. If a person says negatively about himself or herself in a particular area, for example अगर कोई कहता है कि मैं academics में अच्छा नहीं हूँ, तो academics में उसका self concept क्या हो गया, negative self concept. ठीक है. So self concept can be either positive or negative. ठीक है. अब कोई बच्चा कह रहा है कि I am good at sports, तो स्पोर्ट्स में द चाइल्ड हैज पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट क्योंकि उसका खुद के बारे में आइडिया पॉजिटिव है ना. ओके, और इफ अ पर्सन सेज दैट आई एम पुअर एट मैथमेटिक्स और आई एम पुअर एट हिंदी और इंग्लिश, then what is it? This represents the negative self concept.
ठीक है, एंड it could be at various levels, like for or at various areas. For example, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत सारे एरियाज में पॉजिटिव हो सकता है और बहुत सारे एरियाज में नेगेटिव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बच्चा रीडिंग में अच्छा है तो वो कहेगा दैट आई एम गुड एट रीडिंग, यानी उसका रीडिंग में सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, यानी उसको पता है कि मैं रीडिंग में अच्छा हूँ, राइट. बट अगर कोई मैथ्स में पुअर है तो वो उसका मैथ्स में सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होगा, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट. ओके, let's move on to the next important. This is the very important concept, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. आप में से इसमें से या तो एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है और एल्स यू कुड बी आस्क्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम क्या होती है? अपने बारे में वैल्यू जजमेंट करना, अपनी वर्थ के बारे में जजमेंट करना, अपनी आप किस लायक हो उसके बारे में आप खुद को जज करते हो. ठीक है, सो एज पर्सन्स वी मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ. दिस वैल्यू जजमेंट ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम. सो आपके खुद के बारे में, आपकी वर्थ के बारे में, दैट वेदर आई एम वर्थ इट और नॉट, इसके बारे में जजमेंट लगाना खुद से और खुद के ही बारे में, दैट इज सेल्फ एस्टीम. अब जस्ट लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम कुड बी हाई और इट कुड बी लो सेल्फ एस्टीम. ठीक है, अब कोई बच्चा कहता है दैट फॉर एग्जाम्पल आई एम गुड एट होमवर्क और आई एम यूजुअली chosen for the games or I'm highly liked by my peers or my friends like me or I am, अच्छा क्लास में कई बच्चे कहते हैं ना I am the smartest child in the class, मैं तो बहुत समझदार हूँ. तो what is this? This is the high self esteem. ठीक है, अगर कोई बच्चा कहता है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, then what is it? This is the low self esteem. ठीक है, अब सेल्फ एस्टीम को आप एवरीडे बिहेवियर में भी जज कर सकते हो. सो बेसिकली, just a second, let me change the color of the pen. Okay, so basically the self esteem shows strong relationship with our everyday behavior. आपका जो everyday behavior है उससे आपके self esteem आप जज कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको समझना है कि सामने वाले का सेल्फ एस्टीम हाई है या लो है, आप उसके डेली बिहेवियर से जज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन विद हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम परफॉर्म बेटर इन स्कूल्स. अब जिन बच्चों का एकेडमिक सेल्फ एस्टीम हाई होगा उनके एकेडमिक ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे. क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, है ना. और जिनका स्कोर लो होगा, फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार आपको पेरेंट टीचर मीटिंग पर टीचर से सुनने को मिलता है कि इस बच्चे को आता सब है पर इसके मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है. तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपका उस सब्जेक्ट में और उस एरिया में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लो है. ठीक है, सो लो सेल्फ कॉन्सेप्ट इन एकेडमिक्स में लीड टू poor marks or poor grades or less marks or less grades. Okay, and children with high social self esteem are more liked by peers. अब क्लास में हम देखते हैं कि एक बच्चा जरूर कोई ना कोई ऐसा होता है जो अलग से बैठा होता है, आइसोलेटेड, अकेला बैठा होता है, उसको बहुत शर्म आती है सबसे बात करने में. तो उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम कैसा होता है, लो सेल्फ एस्टीम. ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड एक बच्चा जरूर होता है ऐसा क्लास में जिसका हर कोई फ्रेंड होता है एंड दैट पर्सन इज द फेमस चाइल्ड ऑफ द क्लास. अब आप 12th में जब फेयरवेल के लिए जाओगे, आपको जब फेयरवेल मिलेगा तो आप में से एक मिस पॉपुलर एंड मिस्टर पॉपुलर होगा या मास्टर पॉपुलर होगा. सो that person, that Miss Popular, Master Popular is the one who has the high self-esteem. And those children who are isolated and they remain
on their own, they are shy in talking, they are introvert, they are not communicating their feelings with other people of the class or with even with their friends and significant others. That represents that they have लो सेल्फ एस्टीम. ठीक है. अच्छा, अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो होगा तो आपको एंजाइटी के चांसेस हो सकते हैं, डिप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, और द पर्सन में ऑल्सो शो द एंटी सोशल बिहेवियर. एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है? ऐसे बिहेवियर्स जो सोशल नहीं होते. एंटी, ANTI, एंटी सोशल, यानी ऐसे बिहेवियर्स जो सोशली अप्रोप्रिएट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, स्टीलिंग ऑफ थिंग्स, always bullying others. So that is also an example of antisocial behavior. ठीक है. All right, now let's move on to the behavioral aspects of self. अब behavioral aspect क्या हो गया? या जो हमारे behavior में दिखेंगे. behavioral aspects क्या हैं? जो हमारे behavior में दिखेंगे. Okay, so behavioral aspects of self is divided into two parts. One is self-efficacy and other one is self-regulation. Self-efficacy क्या होती है? Let's understand. देखो, सेल्फ एफिकेसी याद करनी है ना, तो इसके साथ एक नेम जरूर ऐड कर लो. इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में. बंड्यूरा. Who was Bandura? Pause and think for a moment. Yes, you guessed it right. Bandura was the psychologist जिसके बारे में अपने क्लास 11th में लर्निंग चैप्टर 6 NCERT में पढ़ा था, जिसने हमें क्या दिया था? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, राइट? हु गेव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ विकैरियस लर्निंग, है ना? विकैरियस लर्निंग, राइट? याद है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, है ना? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कॉन्सेप्ट था, इफ वी रिमेम्बर. ओके, सो सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? बेसिकली सेल्फ एफिकेसी होता है कि इंडिविजुअल का बिलीफ कि वो सिचुएशन को कितना मास्टर कर सकता है, सिचुएशन को कितना इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है और कितने पॉजिटिव आउटकम्स को प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, सो self-efficacy refers to an individual's belief about his or her own effectiveness, कि हम कितने effective हैं. It is the expectation or the realization that one can master the situation and can produce the positive outcomes, कि आप situation को कैसे mastery कर सकते हो situation पे और positive outcomes produce कर सकते हो. So there is another term which is not mentioned in your book. Resilience. Resilience means the ability to bounce back. ठीक है, कैसे हम situations से वापस निकल कर और निखर कर आते हैं. हम कहते हैं ना, grow through what you go through, है ना? तो रेजिलियंस इज दैट ओनली कि आप कितने अच्छे से बाउंस बैक करते हो सिचुएशन से. दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी. अगर आपका सेल्फ एफिकेसी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी सिचुएशन पे मास्टरी बड़ी अच्छी है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि आप CUET में अच्छा परफॉर्म कर लोगे, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो आप अभी से बहुत अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दोगे, राइट? और जेन्युइनली आपके ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे, आपकी पोजीशन, आपकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी आएगी. ठीक है. सो इफ यू हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी, देन यू कैन कंस्ट्रक्ट द लाइफ आउटकम्स और द लाइफ सर्कमस्टांसेस ऑन योर own. You can even influence the life, you can even select the, or you can even influence the circumstances of your life on your own. ठीक है. जिनका सेल्फ एफिकेसी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उनको स्ट्रेस बहुत कम होता है और उनको डर भी बहुत कम लगता है. ठीक है. सो दोज विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी आर लेस फियरफुल. अब सेल्फ एफिकेसी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं बच्चे का? सेल्फ एफिकेसी आप बच्चे को समझा के, उसे स्ट्रॉन्ग बना के, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे के सोसाइटी के साथ, पेरेंट्स को एक एज के बाद बच्चों को उनकी स्पेस देनी चाहिए सो दैट उनका सेल्फ एफिकेसी स्ट्रॉन्ग हो सके.
अगर हमने किसी सिचुएशन से पहले अगर हम नहीं लड़े होंगे और वही सिचुएशन हमारे आगे आ गई फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम इतने अच्छे से उसे टैकल नहीं कर पाएंगे बजाय तब के जब हम किसी सिचुएशन से सेकेंड थर्ड टाइम लड़ रहे हैं। ठीक है, सो इफ वी हैव द प्रायर एक्सपोजर देन वी हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट विद इट और टू प्रोड्यूस द पॉजिटिव आउटकम्स आउट ऑफ इट। अब जिसने 10th में बोर्ड एग्जाम दिया होगा वो 12th में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा क्योंकि दे नो द कल्चर ऑफ द बोर्ड एग्जाम, right? So they may have a strong sense of self-efficacy. Okay, so बहुत से लोग, बहुत से youngsters, they quit smoking the moment they decide to do so. Why? Because they have high sense of self-efficacy. ठीक है? Now let's move on to the next concept, that is self-regulation. So self-regulation भी आपका एक behavioral aspect है self का. Self-regulation का मतलब क्या होता है? Regulation word का मतलब क्या होता है? Control your own self. हम कहते हैं ना regulate your own self, यानी कि खुद पर control करो. Self-regulation यानी कि self control, खुद पर control होना. ठीक है, अब कैसे कर सकते हो? खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, इंस्ट्रक्ट करके और रीइंफोर्स करके. तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन होता क्या है. सो सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड ऑर्गेनाइज आवर ओन बिहेवियर. हमारी एबिलिटी कि हम अपने बिहेवियर को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड कैसे मॉनिटर कर सकते हैं. ठीक है, so people who are able to change their behavior according to the demands of external environment are high on self monitoring और self regulation. So self regulation क्या होती है? हमारी ability, किस चीज की ability? ऑर्गेनाइज कर सके हम और मॉनिटर कर सके हम अपने खुद के बिहेवियर को. ठीक है, our ability to organize and monitor our own behavior. Okay, so जो लोग अपने behavior को अच्छे से organize कर लेते हैं, डिमांड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिमांड से मीट कर जाते हैं, एक्सटर्नल डिमांड्स को समझ के अपना बिहेवियर चेंज कर पाते हैं, दे आर सेट टू हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग. ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? इसके लिए हमें चाहिए होती है हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर. ठीक है, अब कितनी बार होता है कि फ्रेंड्स कहते हैं चलो चलो घूमने चले, बट यू हैव अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो, पर आपका मन तो बहुत कर रहा होता है फ्रेंड के साथ जाने का. देन व्हाट डू? यू बी असर्टिव, दैट इज यू से नो टू योर फ्रेंड, राइट? मन तो बहुत होता है लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेते हैं. कैसे करते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द विल पावर दैट वी हैव. तो विल पावर plays a very important and crucial role in self control. Okay, चलो, learning to defer or delay the gratification of needs is called self control. कि आप जब सीख जाते हो खुद की नीड्स को, खुद के इच्छाओं को डीले करना या रोकना, जब आप ये चीजें लर्न कर लेते हो कि अपने बिहेवियर को आप कैसे, अपनी इच्छाओं को कैसे डीले कर सको या रोक सको, तो आप उसे कहते हो सेल्फ कंट्रोल, यानी आपने खुद पर सेल्फ कंट्रोल पा लिया है. ठीक है, नाउ देयर आर 3 ways of self control as I have told you before. One is observation of our own behavior, खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना. If you want to manage your weight, regulate your weight, now what you will do? You will be looking out for various things that are increasing your weight. So you will try to change that habit of eating those high calorie food or junk food, right? You will stop eating parathas, you will stop eating chocolates, you will change that behavior, you will modify the behavior, right? And you will
strengthen certain aspects of yourself. That is, you may increase your willpower or you may change your behavior कि घर में अगर पॉपकॉर्न बन रहे हैं एंड कौन से वेट गेन होता है देन आई ईट मखानास. सो वॉट यू आर डूइंग, यू आर स्ट्रेंथनिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ. आप अपने आप को समझा रहे हो, काउंसिल कर रहे हो, राइट. सो ये काउंसिलिंग क्या होती है, समझाना खुद को क्या होता है, सेल्फ इंस्ट्रक्ट करना. So we often instruct ourselves to do something and behave in the way we want to. ठीक है. So जब हमें desirable outcome मिल जाता है बिहेवियर को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करने के बाद, तो हम क्या करते हैं, खुद को रीइंफोर्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, अगर आपको अपना वेट रेगुलेट करना है एंड you have stopped eating junk food, you have stopped eating chocolates and popcorns, and you have started eating makhanas, you have started eating jaggery instead of chocolate, and next day आप weighing machine में या after 1 week आप weighing machine में देखते हो that oh my weight has reduced and you are in so much of happiness. So what do? You pat yourself, right? अब दोबारा से बड़ा वाला चीट डे बना के तो we are not going to pat ourselves, right? How we are going to pat ourselves? By feeling good about us, right? By taking some pictures of us that oh I have reduced some weight, है ना. तो ये क्या है, ये रीइंफोर्समेंट है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट. खुद से खुद को आप क्या कर रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो. ठीक है ना. प्लेजेंट आउटकम एक रिवॉर्ड से कम तो नहीं होता है ना. अब कितनी बार होता है जब हमारे एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं. ओके, आई गिव यू माय एग्जांपल. ड्यूरिंग माय टाइम वी यूज्ड टू हैव हैप्पी मील्स फ्रॉम मैकडोनल्ड्स. आज भी आते हैं बट तब की बात बहुत अलग थी. आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड, बहुत पुरानी बात है. सो वी हैड दिस इन आवर हाउस. आई यूज टू टेल माई मॉम कि ममा अगर मेरे 85 अबव मार्क्स आए ना तो प्लीज़ आप मुझे एक हैप्पी मील ला के देना. ठीक है. सो व्हाट वाज इट, इट वाज माय वे ऑफ reinforcing it myself. So it was a way of self reinforcement. ठीक है. I usually share this example with my students. So yes, okay. So self regulation कैसे होती है, by 3 things: observation of our own behavior, self instruction and self reinforcement. So with this, we cover our cognitive and behavioral aspects of self. If you have any doubts, you can ask me in the comment section below. And if you are interested for psychology classes or psychology tuitions, you can ask for the details in the comment section. And if you require the counseling sessions, if you need any counseling session regarding any emotional or behavioral issue, for that also you can approach me. You can book a session with me. Okay. So have a good day. Take care. God bless you all.